بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیع الاصول والثمار۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق اگر کوئی ایسے ہیں جو اس کو اچھی طرح یاد کر آئے ہیں تو سنا سکتے ہیں، بغیر اٹکے اور بغیر رکے اگر سنا سکتے ہیں تو سنائیے۔ پچھلا سبق باب الربا، صرف آپ کو سنانا ہے، پڑھنا نہیں ہے عربی بولے بغیر، آپ کو صرف سنانا ہے کہ آپ اس سبق میں کیا سمجھے، اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی یاد کر آئے ہیں تو سنائیے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ تیاری کر آئیں اور کلاس کے ساتھ چلیں، اس وجہ سے وہ چیز ہے۔ اور ہر سبق کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے کہ جس کو بھی موقع مل رہا ہے، بغیر کسی فرد کے خاص کیے کہ جس کو بھی موقع مل رہا ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ موقع نکالیں کہ وہ جو سبق ہم لوگ آج پڑھتے ہیں آئندہ ہفتے کے لیے اس سبق کی تیاری کر آئیے۔ آپ اس سبق کے ترجمے کو باقاعدہ اپنے ذہن میں ذہن نشین کر آئیے اور اس کو زبانی سنانے کی کوشش کیجیے۔ تو اس طرح اگر کوئی ہے تو سنائیے، نہیں تو پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے اور گھی دودھ کے بدلے اور گیہوں کے بدلے اور کھجور کے بدلے اور نمک کے بدلے برابر برابر ایک جیسا اور برابر برابر اگر ہو اور ان میں جو چیزیں مختلف ہوں ان اصناف میں سے ان کو بیچنا جیسے بھی ہو جائز ہے، بالکل یدن بیدن بالکل ہاتھ ہاتھ سے۔ اور جس نے اس میں سے کچھ زیادتی کی یا زیادتی مانگی تو اس نے سود لیا۔ اور کھانے والی چیزوں کو بیچنا جائز نہیں جن کو ناپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے انہیں کی جنس کے مطابق، مگر یہ جو برابر برابر ہو، ایک جیسے مثل ہو۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو بیچا جائے کہ جن کو یا جائز نہیں ان چیزوں کو جن کو ناپا جاتا ہے اسی کی جنس کے وزن کے ساتھ، جن چیزوں کو ہم ناپ کے لیتے ہیں ان کو وزن کر کے ہم نہیں بیچ سکتے۔ بارک اللہ فیک، کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیع الاصول والثمار، باب بیع الاصول والثمار۔ روی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع۔ باب بیع الاصول والثمار، اصول اور پھلوں کی بیع، اصول اور پھلوں کی بیع۔ رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال کہ آپ نے فرمایا، من باع نخلا بعد ان تؤبر، جس نے کھجور کے درخت پیوند کاری کے عمل کے بعد خریدے۔ من باع نخلا، جس نے کھجور کے درخت خریدے، بعد ان تؤبر، ان کی تعبیر یا پیوند کاری کے بعد، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ شرح میں۔ جس نے کھجور کے درخت خریدے ان کی تعبیر یا ان کی پیوند کاری کے بعد، فثمرتها للبائع، تو اس کے پھل بیچنے والے کے ہوں گے، تو اس کے پھل بیچنے والے کے ہوں گے، بائع کے ہوں گے۔ الا ان یشترطها المبتاع، سوائے اس کے کہ خریدار، خریدنے والا اس کی شرط لگا لے، سوائے یہ کہ اس کی خریدار شروع ہی میں اس کی شرط رکھے۔ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ، اسی طرح سارے درخت ہیں، اذا كان ثمره بادیا، جب ان کے پھل ظاہر ہو چکے ہوں، اسی طرح سارے درختوں کا معاملہ ہے جب ان کے پھل ظاہر ہو چکے ہوں۔ وَإِن بَاعَ الْأَرْضَ، اور اگر وہ کسی زمین کو خریدے، وَفِيهَا زَرْعٌ، وَفِيهَا زَرْعٌ، اور اس میں فصل ہو،
ला युहसदु जो काटी नहीं जाती, इल्ला मर्रतन मगर एक ही दफा, फहुवा लिल बाई तो वो बेचने वाले की होगी, बाए की होगी। व इन बाअल अर्दा और अगर वो कोई जमीन खरीदे, वो फीहा ज़रउन और उसमें फल हो, ला उसमें खेती हो, ला युहसदु इल्ला मर्रतन जो नहीं काटी जाती मगर एक ही दफा, फहुवा लिल बाई तो वो बाए की होगी, मालम यश्तरितहुल मुब्ताउ जब तक के खरीदार उसकी शर्त न रखे, जब तक के खरीदार उसकी शर्त न रखे। वो इनकाना युजज़्ज़ु मर्रतन बाद मर्रतिन और अगर उसकी फसल काटी जाती हो एक के बाद एक दफा, मर्रतन बाद मर्रतिन एक के बाद एक दफा यानी कई दफा बार बार, और अगर उसकी फसल बार बार काटी जाती हो, फल उसूलु लिल मुश्तरी तो उसके उसूल मुश्तरी के होंगे, वल जुज़्ज़तु ज़ाहिरतु और वो फसल जो कि जाहिर हो गई होगी, और वो फसल जो कि जाहिर हुई होगी, इंदल बै के वक्त पर, खरीद फरोख्त करते वक्त पर, और वो फसल जो जाहिर हुई हो खरीद फरोख्त के मौके पर या बै के मौके पर, लिल बाई वो बाए की होगी। फल उसूल लिल मुश्तरी तो उसूल मुश्तरी के होंगे, वल जुज़्ज़तु ज़ाहिरतु इंदल बैई और जो फसल जाहिर हुई हो खरीदने के वक्त पर, लिल बाई तो वो बाए की होगी। बाबू बैइल उसूली व सिमार उसूल और फलों की बै। उसूल जमा है असल की, उसूल जमा है असल की, और असल उस चीज को कहते हैं जिस पर किसी चीज की बुनियाद हो, किसी चीज की बुनियाद जिस पर होती है उसे असल कहते हैं। मिसाल के तौर पर दीवारों और छत बुनियाद उसकी असल है, दीवार और छत किस पर खड़े हुए हैं, बुनियाद पर, तो वो बुनियाद असल हो गई किसकी, दीवारों और छत की। इसी तरह दरख्त की जड़ बुनियाद है, असल है, दरख्त की जड़ असल है उसके फलों और उसके शाखों वगैरह के लिए, दरख्त के लिए। तो असल कहते हैं जिस पर किसी दूसरे की बुनियाद हो तो वो असल है। असलुहा साबितुन व फरूहा फिस समा, अल्लाह ताला ने कलमे तैयबा की मिसाल दी कि उसकी असल जमीन में साबित है और उसके फरा उसके फुरू आसमानों तक पहुंचे हुए हैं, तो उसकी शाखें आसमानों तक पहुंची हुई हैं। तो यहाँ उसूल से मुराद वो चीजें हैं जिन पर दूसरी चीजें होती हैं, जिनसे दूसरी चीजें मुताल्लिक होती हैं। जैसे ज़रई जमीन है, उस पर ज़राअत होती है तो वो जमीन असल हो गई ज़रई जमीन, और उस पर पैदा होने वाली जो ज़राअत है वो जो है उस पर उसकी फरा है। इसी तरह दरख्त है, दरख्त असल है और उस पर जो पैदा होते हैं फल वो उसकी फरा है। तो उसूल यानी दरख्तों की और वो ज़रई जमीन की बै, वो मुराद है यहाँ। यहाँ उसूल से मुराद वो ज़रई जमीन है और वो दरख्त हैं जिन पर फसल होती है और जिन पर फल पैदा होते हैं। वाज़े है। वह सिमारी, सिमार जमा है समर की, उसके माने है फल। उसूल और फलों की बै, उसूल और फलों की बै। रुया अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया गया कि आपने फरमाया, मन बाअ नखलन, जिसने खजूर के दरख्त खरीदे, बाद अन तुअब्बर, उनकी पैवनकारी के बाद। तुअब्बर ये ताबीर से है, ताबीर कहते हैं तलक़ीह को, और उसके तर्जुमा हम लोग करते हैं पैवनकारी। और वो ये है कि खजूर के नर खजूर का गूदा लेकर मादा खजूर के खोशे में रख देते हैं। खजूर की जब बालियां पैदा होती हैं, खजूर जब में बालियां पैदा होती हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, नर खजूर का मादा या फिर नर खजूर का जो खोशा है वो खोशा मादा लेकर नर खजूर के मादे को जो मादा खजूर है उसके खोशे में रख देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। उसकी वजह से फसल अच्छी तरह पैदा होती है, फसल ज्यादा होती है, उसको कहते हैं ताबीर, उसको कहते हैं ताबीर। यही वो मशहूर चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो आपने लोगों को ताबीर पैवनकारी करते हुए देखा कि वो नर खजूर का गूदा लेकर मादा खजूर के खोशे में मिला रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह कर रहे हैं। तो आपने कहा कि अगर तुम ना करो तो बेहतर होगा। तो एक साल उन्होंने नहीं किया। उसके बाद वो दरख्त में जो फल पैदा हुए बहुत नाकारा थे
और अच्छी फसल नहीं हुई, तो आपने देखा तो कहा कि तुम्हारे दरख्तों को क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी थी और हमने ऐसा किया आपके कहने की बुनियाद पर। तो उस वक्त आपने कहा था कि अंतुम आलमु बिशुऊनी दुनियाकुम, अंतुम आलमु बिउमूरी दुनियाकुम, तुम अपने दुनियावी उमूर के बारे में ज्यादा जानते हो। ये बहुत मारूफ हदीस है और बहुत ही बुनियादी हदीस है दीनी और दुनियावी उमूर में फर्क करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सिलसिले में लोगों के दीनी एतबार से हिदायत लेकर आए थे, शरीयत लेकर आए थे, अल्लाह तबारक तआला की वही लेकर आए थे। लिहाजा दुनियावी जो मामलात हैं, जैसे इल्म तिब है, वो तजुर्बे से साबित है कि फला दवा फला बीमारी के लिए इलाज है, या फला ऑपरेशन फला बीमारी के लिए इस तरह किया जाता है, तो शरीयत इस सिलसिले में कोई रुकावट नहीं बनती। शरीयत तजुर्बे और मुशाहिदे से ये जितने भी दुनियावी उलूम है, तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में उनको उसी तरह तरक्की दी जाएगी। इसमें शरीयत का ताल्लुक यही होगा कि उसमें किसी को धोखा ना दिया जाए, उसमें किसी पर जुल्म ना किया जाए, उसमें किसी पर इसराफ ना किया जाए, और उसमें कोई हराम काम ना किया जाए, किसी हराम चीज का इस्तेमाल ना करे। इस तरह से शरीयत का दखल रहेगा, लेकिन उन चीजों के करने के सिलसिले में शरीयत नहीं रोकती, शरीयत नहीं रोकती। तो वो तमाम लोग जो कि बिदअत के सिलसिले में ये मिसालें देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हवाई जहाज भी नहीं थी, ट्रेनें भी नहीं थी, बस नहीं थी, तो फिर अब क्यों आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए ये हदीस जवाब है, क्योंकि इसका ताल्लुक दुनियावी उमूर से है। दीन उससे बात नहीं करता, दीन तो उस सिलसिले में तरक्की करने की दावत देता है। उस सिलसिले में जो भी तजुर्बात होंगे, जो भी मुशाहदात होंगे, जो भी लोगों के लिए तरीके होंगे, उस पर लोग फिक्र करें, गौर करें, मेहनत करें, मशक्कत करें, ये चीज मतलूब है। लेकिन जो उस सिलसिले में जो दीनी रहनुमाई है, जो शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वो दीन के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। तो यही पैवनकारी है कि नर खजूर का गूदा मादा खजूर के खोशे में मिला दिया जाता है, जिस वजह से फसल अच्छी होती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि जिसने खजूर के दरख्त खरीदे, किस चीज के बाद? पैवनकारी के बाद, फसमरतुहा लिलबाइ, तो उसके फल बाए के होंगे पैवनकारी के बाद, क्योंकि पैवनकारी से पहले फसल में खतरा होता है। हो सकता फसल पैदा नहीं होगी, हो सकता आगे ही नहीं बढ़ेगी, खतरा ज्यादा होते हैं। जब तक फसल जाहिर नहीं हो जाती, जब तक फसल जाहिर नहीं हो जाती या उसमें पैवनकारी नहीं कर दी जाती, तब तक खतरा ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उससे पहले भी, अलबत्ता अगर ये पैवनकारी कर दी गई, उस सूरत में किसी शख्स ने अपना कोई बाग बेचा और उसमें खजूर के दरख्त थे और वो खजूर के दरख्त की पैवनकारी हो चुकी थी, तो उसके बाद उसने उस वक्त वो बेचा। तो अब ये है कि उसके बाद अब इस हदीस में जो बात बताई गई वो ये कि जब वो फल होंगे तो वो फल किसके होंगे? बाए के होंगे, वो फल बाए के होंगे। इसका मफहूम ये हुआ कि अगर पैवनकारी से पहले बेच दिया तो वो फल किसके होंगे? मुश्तरी के होंगे, खरीदार के होंगे, क्योंकि वो बाए ने जब उसे बेचा है तो उसमें पैवनकारी के मकाम तक वो पहुंच चुका है, तो उसमें उसकी मेहनत लग चुकी है, तो उसके फल भी उसी के होंगे। तो जिसने खजूर के दरख्त इस हालत में बेचे कि उनकी पैवनकारी की जा चुकी थी, फसमरतुहा लिलबाइ, तो उसके फल बाए के होंगे, इल्ला अन यश्तरी बहल मुक्ताउ, सिवाय इसके कि खरीदार शर्त लगा ले उस बाग को खरीदते वक्त कि इसमें जो फल हैं अब जो जाहिर हो रहे हैं, जिनकी पैवनकारी हो चुकी है, वो मैं लूंगा। तो फिर अल मुस्लिमून अला शुरूती है, मुसलमान अपने शर्तों पर अमल करेंगे, तो उस वक्त वो मुश्तरी के होंगे। लेकिन अगर कोई शर्त नहीं रखी गई थी तो ऐसी सूरत में किसके होंगे? वो बाय के होंगे, यानी उनकी पैवनकारी से पहले अगर उसे बेचा गया तो वो फिर मुश्तरी के होंगे, लेकिन पैवनकारी के बाद बेचा गया तो वो बाय के होंगे, इल्ला है कि मुश्तरी उसको शर्त रखा हो। वो कज़ालिका साइरु शजरी, इसी तरह खजूर के अलावा दूसरे दरख्त हैं, इसी तरह खजूर के अलावा जितने भी दूसरे दरख्त हैं, जैसे जैतून के हैं और फिर इसी तरह अंजीर के हैं, जितने भी बाकी इसके अलावा अंगूर के हैं, ये सारे के सारे इनका यही मामला होगा। इदा कान समरुहु बादियन, जब उनके फल जाहिर हो चुके हों। अगर उनके फलों के जाहिर होने के बाद खजूर का जिक्र उन्होंने किया पैवनकारी के साथ, और दूसरे दरख्तों का उन्होंने जिक्र किया उनके फलों के जाहिर होने के साथ, फलों के जाहिर होने के साथ। तो जैसे जैतून के दरख्त है, अंजीर के दरख्त है, उनके फल जाहिर हो चुके हैं, उसके बाद उसे बेचा है, तो वो फल किसके होंगे? बाय के होंगे, सिवाय इसके के मुश्तरी ने शर्त लगा दी हो, सिवाय इसके मुश्तरी ने शर्त लगा दी हो। लेकिन अगर फलों के जाहिर होने से पहले उस बाग को बेचा तो वह किसके होंगे? मुश्तरी के होंगे। वह इन बाअल अर्दा व फीहा ज़रउन, और अगर वो अपनी जमीन बेचे, ज़री जमीन बेचे, व फीहा ज़रउन, और उसमें कोई फसल हो, ज़िराअत हो, ला युहसदु, वो ज़िराअत ऐसी है
जो काटी नहीं जाती, इल्ला मर्रा, मगर एक मरतबा, साल में एक ही दफा उसमें फसल होती है। फहुवा लिलबाय, तो बाय के लिए, मिसाल के तौर पर गेहूं है, जौ है, गेहूं और जौ, कोई शख्स अपने खेत बेच रहा है और उसमें फसल लगी है गेहूं की, जौ की, वो एक ही मरतबा होती है साल में, बार बार नहीं होती। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो फसल किसकी होगी? बेचा है, बाय, फहुवा लिलबाय, एक ही मरतबा। ऐसी फसल है वो जिसमें फसल जो पैदा होती है वो एक ही मरतबा पैदा होती है, तो वो बाए की होगी। मालम यश्तरीथुल मुब्ताउ, जब तक के खरीदार ने शर्त न लगाई हो। अगर खरीदार वो जमीन खरीदते वक्त ये शर्त लगा ले कि इसमें जो फसल लहरा रही है या फसल पैदा हो रही है वो मेरी होगी, तो फिर उस वक्त मुश्तरी की होगी, वरना वो किसकी होगी? बाए की होगी। वो इन का ना युजज़ु, और अगर वो फसल ऐसी हो जिसे काटा जाता है, मर्रतन बादा मर्रतिन, कई दफा बार बार होती है, मिसाल के तौर पर बगदोनस है, या फिर टमाटर है, या फिर ककड़ी है, या फिर बैगन है, ये बार बार पैदा होते हैं, साल में कई मरतबा इनकी फसल पैदा होती है। तो अगर ऐसी चीज है जिसको बार बार काटा जाता है, तो फल उसूल लिल मुश्तरी, तो उसके जो दरख्त होंगे वो तो मुश्तरी के होंगे, क्योंकि एक बार तोड़ लेंगे फिर उन्हीं दरख्तों पर दूसरी फसल आएगी, तो उसूल तो मुश्तरी के होंगे। लेकिन वल जुज़्ज़तु ज़ाहिरतु, वो फसल जो जाहिर हो चुकी थी इंदल बैई, खरीद और फरोख्त करते वक्त जब बेच रहे थे, तो जो चीज जाहिर हुई थी, जो फसल जाहिर हुई थी, वो लिल बाए की होगी। लेकिन उसके बाद जो आएगी वो किसकी होगी? मुश्तरी की होगी। उसूल भी मुश्तरी के होंगे, और वो फसल जो जाहिर हो चुकी थी उसके अलावा जो दूसरी फसल बार बार पैदा होती जाएगी वो किसकी होगी? मुश्तरी की होगी। वाज़ेह है ना? जी हाँ, बिल्कुल आसान सबक है। उसके बाद आगे बढ़िए, फसल। कोई सवाल है इस सिलसिले में? चलिए आगे बढ़िए, ये सबक इसी से मुताल्लिक़ है, इसी में मजीद हम लोग जो है यही सबक, यही बात और दूसरे मसाइल के साथ वाज़ेह होगी। फसल, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइस समरती हत्ता यबदु सलाहुहा, व इन बाअ समरता बादा बुदुव्वी सलाहिहा अला तर्की इलल जुज़ाज़ी जाज़ा, व इन असाबतहा जाइहतुन रजअ बिहा अलल बाइइ, लिक़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ बिअता मिन अखीका समरन फ़असाबतहु जाइहतुन फला यहिल्लु लका अन तअख़ुज़ मिन्हु शैअन बिमा तअख़ुज़ु माल अखीका बिग़ैरि हक़्क़, व सलाहु समरिन नख़्लि अन यहमर्र औ यस्फ़र्र, वल इनबि अन यतमव्वह, व साइरि समरि अन यब्दु फ़ीहिन नुब्जु व यतीब अकलु। ठीक है, फसल है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अन बैइस समरती, फलों की बै से, फलों को बेचने से, हत्ता यब्दु सलाहुहा, यहाँ तक कि उनकी सलाहियत नुमाया हो जाए, यहाँ तक कि ये चीज नुमाया हो जाए कि ये फल की फसल पैदा होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की बै से, फलों की खरीद फरोख्त से मना फरमाया है, यहाँ तक कि उनकी सलाहियत नुमाया हो जाए। व इन बाअ समरता बादा बुदुव्वी सलाहिहा, और अगर वो खरीदे या बेचे फलों को उनकी सलाहियत के नुमाया होने के बाद, अलग तरकी, इस शर्त पर कि वो छोड़ देगा, इलल जुज़ाज़ी, कि वो फलों को छोड़े रखेगा उसके काटने के वक्त तक, तो जायज़ है। यानी अगर वो फलों को इस हालत में बेचे, इस हालत में कि उनकी सलाहियत वाज़ेह हो चुकी है, और इस बुनियाद पर वो बेच रहा है कि वो फलों को अब दरख्त पर ही रखेगा यहाँ तक कि उसके काटने का वक्त आ जाए, तो ये चीज जायज़ है। ठीक है। व इन बाअ बादा बुदुव्वी सलाहिहा, और अगर वो बेचे फलों को उनकी सलाहियत के नुमाया होने के बाद, अला तर्की इलल जुज़ाज़ी, उनके तोड़ने के वक्त तक, उनके तोड़ने के वक्त तक उसी तरह छोड़ने पर, उनके तोड़ने के वक्त तक उसी तरह छोड़ने पर जाज़ा, तो वो जायज़ होगा। वइन असाबतहा जाइहतुन, और अगर कोई आफत उसे लाहिक हो जाए, वइन असाबतहा जाइहतुन, और अगर कोई आफत उसे लाहिक हो जाए, फला यहिल्लु लका रजा बिहा अलल बाइ, तो वो लौटेगी बेचने वाले पर, तो वो उसका नुकसान होगा, उसका नुकसान बेचने वाले पर होगा। रजा बिहा अलल बाइ, तो उसका नुकसान बेचने वाले पर होगा। लिक़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, लौ बिअता मिन अखीका समरन,
اگر تم اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی پھل فروخت کرو، اگر تم فروخت کرو اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی پھل، اگر تم اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی پھل فروخت کرو، فاصابتہ جائحۃ، اور اسے کوئی مصیبت یا آفت لاحق ہو جائے، فلا یحل لک، تو تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، ان تاخذ منہ شیئا، کہ تم وصول کرو اس میں سے کچھ بھی، تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کچھ بھی وصول کرو۔ بما تاخذ مال اخیک بغیر حق، کس طرح یا پھر کس بنیاد پر تم اپنے بھائی کے مال کو بغیر حق کے لیتے ہو، کس بنیاد پر اپنے بھائی کے مال کو تم بغیر حق کے لیتے ہو۔ وصلاح ثمر النخل، اور کھجور کے پھلوں کی صلاحیت یہ ہے، ان یحمرا، کہ وہ سرخی مائل ہو جائیں، او یصفرا، یا زردی مائل ہو جائیں۔ اور کھجور کے پھلوں کی یعنی کھجوروں کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ سرخی مائل یا زردی مائل ہو جائیں۔ والعنب ان یتموہ، اور کھجوروں کی صلاحیت، انگوروں کی صلاحیت یہ ہے کہ ان کا رنگ واضح ہو جائے، اور وہ جو ہے کھانے کے قابل ہو جائے، اس کا پانی ظاہر ہو جائے، یعنی اہل علم نے اس کو وضاحت کی ہے کہ ان یظہر لونہ ویظہر ماؤہ، کہ اس کا پانی جو ہے ظاہر ہو جائے اور اس کا رنگ وہ جو ہے واضح ہو جائے۔ جیسے وہ انگور اگر کالے ہیں تو ان کا کالا رنگ واضح ہو جائے، اور اگر انگور گرین ہے تو ان کا جو بھی سفید کلر ان کا واضح ہو جائے، گرین کلر واضح ہو جائے، تو یہ ہے تموع۔ تو ہم اس کو ترجمہ کر لیں گے اس طرح کہ اور انگوروں کی صلاحیت یہ ہے کہ اس کا رنگ واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وسائر الثمر، اور دوسرے سارے پھلوں کی صلاحیت یہ ہے، ان یبدو فیہ النضج، کہ ان میں پختگی نمایاں ہو جائے، ویطیب اکلہ، اور ان کا کھانا اچھا لگے۔ اور دوسرے تمام پھلوں کی صلاحیت یہ ہے کہ ان میں پختگی واضح ہو جائے اور ان کا کھانا اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شرح کی طرف آئیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، عن بیع الثمرۃ، پھلوں کی بیع سے، حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ ان کی صلاحیت نمایاں ہو جائے، یہاں تک کہ، کیونکہ جب تک پھلوں میں یہ صلاحیت نمایاں نہیں ہو جاتی تب تک بہت خطرات ہوتے ہیں، ہو سکتا فصل پیدا ہی نہیں ہوگی، ہو سکتا نقصان ہو جائے گا، تو خطرات زیادہ ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان کی بیع سے منع فرمایا۔ لیکن جب ان میں صلاحیت نمایاں ہو جائے تو پھر جائز ہے، اس کو بیچ سکتے ہیں، لیکن کس طریقے سے بیچیں گے اوپر بتایا گیا کس طریقے سے بیچیں گے۔ یہاں بتا رہے ہیں وَإِن بَاعَ الثَّمَرَةَ، اور اگر وہ پھلوں کو بیچے، بعد بُدُوِّ صلاحِهَا، ان کے صلاحیت کے نمایاں ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو نہیں بیچنا تھا لیکن اس کے بعد اگر وہ بیچ رہا ہے، عَلَى التَّرْكِ، چھوڑنے کی بنیاد پر، إِلَى الْجِزَازِ، کاٹنے کے وقت تک، درختوں کو اسی طرح چھوڑیں گے یہاں تک کہ کاٹنے کا وقت آ جائے گا تو جاتا ہے، جائز ہے۔ لیکن کیا وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اور اگر صلاحیت نمایاں ہو گئی، اس کو درختوں پہ ہی چھوڑا گیا، اسے کسی آدمی نے خرید لیا، لیکن ہوا یہ کہ اس پر کوئی آفت آ گئی، مثال کے طور پر سخت سردی ہو گئی، یا شدید بارش ہو گئی، یا ٹڈی دل جو پرندوں کے ہے وہ ان کو جو ہے کھا گئے، یا پھر سخت آندھی آ گئی، یا پھر جو ہے آگ لگ گئی، یا پھر قحط، بارش نہیں ہوئی، پانی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ سوکھ گئی، یہ آفت ہو گئی، جس کی وجہ سے فصل ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ، اور اگر اسے کوئی آفت لاحق ہو جائے، رجع بها على البائع، تو وہ لوٹے گی بیچنے والے پر، تو بیچنے والے کا نقصان ہوگا، جتنی آفت آئی ہے، اگر سارا باغ اس آفت سے جو ہے ضائع ہو چکا ہے تو پھر سارا نقصان ہو جائے گا، اور ورنہ جتنا اگر ایک حصہ ہوا ہے تو ایک حصہ جو ہے کا نقصان جو ہے بائع برداشت کرے گا، باقی جو ہے وہ تو مشتری کا ہے، وہ تو بیچنے کے بعد بالکل۔ نہیں، کاٹنے تک تھا وہ، اس نے کہا کہ اس کو جو ہے کاٹنے تک اس کے پاس ہی رکھے گا، بالکل جتنی فصل ملی اس کی قیمت لے گا کیونکہ وہ بائع ہے نا، وہ مشتری ہے، وہ ہاں بائع تو بیچ چکا ہے، تو فصل کی جو تباہی ہے اس کا نقصان بائع پر لوٹے گا، تو اس حیثیت سے مشتری سے قیمت نہیں لے گا۔ اگر وہ پوری فصل تباہ ہوئی ہے
तो कोई कीमत नहीं लेगा। अगर आधी फसल तबाह हुई है तो फिर आधी फसल की कीमत लेगा। अगर 1/4 फसल तबाह हुई है तो फिर बाकी 3 जो हिस्से हैं उनकी कीमत लेगा, जितना है उसके हिसाब से। फला लिखौल रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के इस फरमान की वजह से, लौ बिअता मिन अखीका समरन, अगर तुम बेचो अपने भाई को कोई फल, अपने भाई को, क्योंकि यहाँ अभी पूरी तरह फल उसे नहीं मिले थे। अगर मुकम्मल तौर पर फल बेचते हैं तो फिर ये मसला नहीं होगा, क्योंकि फलों पर जो मुश्तरी है वो कब्जा कर लेगा। जैसे फसल तैयार होने के बाद फल तोड़ लिए गए, उसके बाद फल बेच गए और फल बेचकर वो लेकर चला गया मुश्तरी, उसके बाद फिर वो ज़ाया हो गए, तब तो फिर बाय का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, फल अभी दरख्त पर लगे हैं, फल अभी मुश्तरी ने तोड़े नहीं है, तो उस वक्त की बात है, तो उस वक्त यही मामला होगा। लौ बिअता मिन अखीका समरन, अगर तुम अपने भाई के हाथ कोई फल फरोख्त करो, फासाबतहु जाइहतुन, और उसे कोई आफत लाहिक हो जाए, फला यहिल्लु लका अन ताखुज़ मिन्हु शैया, तो तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि उसमें से कुछ भी वसूल करो। बिमा ताखुज़ माला अखीका बिगैर हक, बगैर हक के तुम कैसे अपने भाई का माल हासिल करते हो, क्योंकि उसे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो उसकी बुनियाद पर वो हासिल नहीं होगा। अब सवाल यह है कि फलों को हम उसकी सलाहियत के नुमाया होने से पहले नहीं बेचेंगे, तो उसकी सलाहियत का नुमाया होना क्या चीज है, तो उसकी शराकत है वो सलाहु समरी नखली, और खजूरों की सलाहियत ये है अन यहमर्रा औ यस्फर्रा, कि वो सुर्खी माइल या जर्दी माइल हो जाए, उससे पहले उनको नहीं बेचना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वो जर्दी माइल सुर्खी माइल हो जाए तो क्या उनकी सलाहियत नुमाया हो जाए, तब बेच सकते हैं। और इसी तरह अंगूरों की सलाहियत ये है कि उनका रंग वाज़ेह हो जाए, तो उससे पहले उनको नहीं बेचेंगे, लेकिन उसके बाद बेच सकते हैं। वसाइल समरी, और सारे फलों की जो सलाहियत है अन यब्दु फीहि नुज़्जु, कि उसमें पुख्तगी आ जाए, फल पुख्ता हो जाए, जैसे कि दाने पुख्ता हो जाए, जैसे जौ है उनके दाने पुख्ता हो जाए, तो ये उनकी सलाहियत है। वो यतीब आकल हो, और उसका खाना अच्छा लगे, तो ये उनकी सलाहियत होगी। जैसे कि हम कह सकते हैं तुफ़ा सेब है और इसी तरह ऑरेंज है, तो ये सब जो है उनमें पुख्तगी जब आ जाएगी। और इसी तरह गेहूं और जौ ज़राअत में आएगा, उसमें आएगा, मतलब कि इन चीजों में आएगा जिनकी बै की हम बात कर रहे हैं। तो फल में समर में आ जाएगा बुर्तखान और तुफ़ा, और दूसरी ज़राअत की चीजों में आ जाएगा अनाज, जो भी है, जो भी गल्ला है, वो तमाम चीजें उसमें आ जाएंगी। तो उनको उस वक्त बेचेंगे जबकि उनके दाने सख्त हो जाए, और ये सेब वगैरह को उस वक्त बेचेंगे जबकि उनमें पुख्तगी आ जाए। हाँ, तो ये तो हम लोग जो है इसकी जो बै कर रहे हैं उसी पर, उसकी बुनियाद पर कर रहे हैं, दरख्तों की बै कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बै इसके बदले में है, पैसों के बदले में है। हम गुज़िश्ता सबक में जो पढ़े थे सूद के बदले, सूद का जो बाब पढ़े थे वो फलों के बदले में बै थी, इसलिए वहां मना था वो, क्योंकि जब तक वो दरख्तों पर है तब तक हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो सूखने के बाद क्या हो जाएंगे, तो इसलिए मना किया गया था कि जो ताज़ा फल हैं या दरख्त पर लगे हुए हैं उनके बदले जो दूसरे फल हैं जो हमारे पास है उनके बदले नहीं बेच सकते, क्योंकि उसमें फलों के बदले में थी, या फिर जो है वो खजूर की, बल्कि अब ज्यादा बेहतर कहे खजूर के बदले में थी। लेकिन यहाँ हम कीमत के बदले में बेच रहे हैं, तो इसमें ये चीज जायज है ना, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि कीमत के बदले में जब आप बेचेंगे इन चीजों को, जो जितनी भी चीजें हैं ग़िज़ा की, कीमत के बदले में बेचेंगे तो उसमें हर तरह जायज है, तो उसके उसूल बताए गए। तो इसको भी जब बेचेंगे तो उस वक्त तक नहीं बेचेंगे जब तक कि उनमें सलाहियत वाज़ेह ना हो जाए। सलाहियत वाज़ेह होने के बाद उनके बेच सकते हैं, लेकिन इन उसूलों की रोशनी में बेच सकते हैं। बात चीजें बात वक्त में दरख्त भी बेच रहा है, बात वक्त में फल भी बेच रहा है, जो भी हालत है, बाग बेच रहा है मुकम्मल तौर पर, उसूल है जो नुकसान है उसके हिसाब से। जो इस फसल में जो बात बताई गई वो ये कि फलों पर जो है उनकी सलाहियत नुमाया हो चुकी थी और उसको तोड़ने के वक्त तक के लिए उसको फलों पर दास्तों पर रखा गया था, लेकिन नुकसान हो गया, तो ऐसी सूरत में उसका नुकसान बाय को होगा, बेचने को वापस करेगा, उस पैसे को वापस करेगा, क्योंकि मुश्तरी को उसका नुकसान हो चुका है उन फलों का जो कि हकीकत में उसका नुकसान इसे पहुंचना है।